نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا مشن۔ وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ تاریخی دورہ چین پر آج روانہ ہو رہے ہیں۔ چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقات شیڈیول، متعدد معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین سے سرمایہ کاری آئے گی۔ پاک چین تعلقات بلندیوں کی نئی سطح کو چھوئیں گے۔ دورے کے بعد چین سے کئی کاروباری اور صنعتی یونٹ پاکستان منتقل ہوں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ۔ کہا، وزیر اعظم عمران خان چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کریں گے۔ چین کے بڑے سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ سیکیورٹی فورسز نے پنجگور نوشکی میں دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ بہادر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ کہا، قوم بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ہماری حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پنجگور اور نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں پر دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ ملک میں کورونا کی 5ویں لہر سے اموات میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 42 افراد جاں بحق۔ 5830 نئے کیسز کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 9.7% رہی۔ گزشتہ روز 59,786 ٹیسٹ کیے گئے۔ مختلف اسپتالوں میں داخل کورونا کے 1590 مریضوں کی حالت نازک قرار۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے 6 جائزہ اجلاس کی منظوری۔ پاکستان کے لیے فوری $1 ارب جاری ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کہا، پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقدامات کیے۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری زرعی اور مالیاتی استحکام لائے گی۔ توانائی کے شعبوں میں گردشی قرض پر قابو پانا پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہے۔ پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ کسی ملک کے لیے شرط نہیں کہ وہ تعلقات کے لیے امریکہ یا چین کا انتخاب کرے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، افغان عوام کو امداد کی شدید ضرورت ہے۔ امریکہ کے شراکت دار ممالک طالبان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تیز ہوائیں چلنے کے باعث کراچی گرد و غبار کی لپیٹ میں۔ دن کے دوران کچھ علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کرنے کا امکان۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ شام تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی اور بلوچستان کے سمندر میں طغیانی کا خدشہ، ماہی گیروں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش، بادل برسنے کے باعث موسم خوشگوار، سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ملکہ کوہسار مری اور ایبٹ آباد میں برف باری، پتھریاٹا اور ٹھنڈیانی جانے والی سڑکیں بند، برف ہٹانے کا کام جاری۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ وزیر اعظم عمران خان آج 3 روزہ تاریخی دورہ چین پر روانہ ہونے والے ہیں۔ چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقاتیں ہوں گی اور متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ اسلام آباد سے دیکھیے عامر سیال کی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان چین کی قیادت کی خصوصی دعوت پر آج 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ موسم سرما کے اولمپکس کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد ہوگا، جس میں کابینہ کے اراکین اور اعلیٰ سرکاری حکام شامل ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے، جن میں پاکستان چین اقتصادی راہداری سمیت اقتصادی تعاون اور تجارت میں اضافے
इजाफे पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। दोनों मुल्कों के रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के दौरान मुतअद्दिद मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग में चीन की मुमताज कारोबारी शख्सियात, चीनी थिंक टैंक्स के नुमाइंदों, माहिर तालीम और सहाफ़ियों से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे से चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 साल मुकम्मल होने की तकरीबात अपने अरूज पर पहुँच जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इजाज़त ली है और क्या यही जो ओपिनियन है ये बरतानिया के होम ऑफिस के अंदर भी नवाज शरीफ जमा करवा सकते हैं? यहाँ तो जमा करवाइए ना, यहाँ पर ब्लड टेस्ट हैं ना उनकी जो दीगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो इस ओपिनियन के साथ नहीं है, ना ही पाकिस्तान हाई कमीशन से जो है इसको सर्टिफाई करवाया गया। और इसी के साथ साथ डॉक्टर शाल ने तो ये कहा था कि आपने चहलकदमी करनी है, वो चहलकदमी की बजाय जो है वो 4-4, 5-5 घंटे का सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया है, 400-400, 500-500 किलोमीटर का। अगर वो 5 घंटे के सफ़र करने के लिए फ़िट हैं तो वो एयर एम्बुलेंस के ऊपर पाकिस्तान आने के लिए भी फ़िट है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये जो सियासी ड्रामाबाजी है उसको छोड़ना चाहिए और यहाँ वापस आएँ। और अगर सॉलिटैरिटी कन्फाइनमेंट का इशू है, जेल जाने का उनको खौफ है, तो पैसा वापस कर दें, लूटा हुआ माल वापस कर दें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त फ़िट हैं और वो कई 100 मील का सफ़र करके दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अगर वो इतने फ़िट हैं तो वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में राग़िब करने के हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए चीन से $3 अरब के कर्ज पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान खारजा और दिफाई उमूर में ताउन को मालियाती शोबे, तजारत और सरमायाकारी तक बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान चीन से $3 अरब के कर्ज के हसूल पर भी मुज़ाकरात करेगा। PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर चीन ने पाकिस्तान को ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए कर्ज दिया था। दरामदाद में इजाफे से मुल्क के ज़राए मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। ताहम हुकूमत का ख्याल है कि सनती शोबे को मुकम्मल पैदावार शुरू होने से बरामदाद में होगा और तजारती खसारे को कम किया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सरमायाकारों को गवादर और खसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने के लिए चीनी हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की जाएगी। चीनी सरमायाकारों को टेक्सटाइल, अद्वियात साजी, फर्नीचर, ज़राअत, चमड़े, IT और गाड़ियों के शोबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जाएगा। पाकिस्तान में तैयार होने वाले सामान को के कम लागत पर बरामद किया जा सकेगा। पाकिस्तान से बहरी जहाजों के जरिए माल बरामद करने की लागत चीन से बरामद करने से आधी है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान का बिजली टैरिफ भी वियतनाम और कंबोडिया के करीब है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि हुकूमत रवां साल ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की कंपनियों की सनती शोबे में सरमायाकारी चाहती है। पाकिस्तान भर में जारी चीन के मंसूबे CPEC के समरात पंजाब को भी मिलने लगे हैं। सूबे में तवानाई, ट्रांसपोर्ट और सनत के मजमूई तौर पर 6 मंसूबे मुकम्मल जबकि 2 ज़ेर तामीर हैं। मज़ीद जानते हैं लाहौर से फैसल इब्राहिम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाक चीन दोस्ती का शाहकार $55 अरब का CPEC मंसूबा मुल्की मौशी पॉलिसियों का अहम जुज बन गया। बिजली घर, सनतों का फरोग और सड़कों की तामीर और मुरम्मत ने मुल्की हालात को यकसर बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान भर की तरह पंजाब में भी CPEC के तहत बड़े पैमाने पर बेशतर मंसूबों पर काम मुकम्मल जबकि मुताद्दद पर काम जारी है। तवानाई शोबे की बात की जाए तो तवानाई के 3 मंसूबे मुकम्मल, 1 ज़ेरे तामीर जबकि 1 पाइपलाइन में है। साहिवाल कोल पावर प्लांट, कायदे आजम सोलर पार्क बहावलपुर और मटियारी से लाहौर तक 660 kV की 900 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा मुकम्मल है। इसी तरह दरिया जहलम पर करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पंजाब और आजाद कश्मीर में ज़ेरे तामीर है, जो कि 720 मेगावाट बिजली मुहैया करेगा। इसी तरह आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जो 700 मेगावाट बिजली मुहैया करेगा।
दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट के शोबे में 3 मंसूबे मुकम्मल जबकि 1 पाइपलाइन में है। पंजाब से गुजरने वाली पिशावर तक कराची मोटरवे पर मुल्तान तक सखर 392 किलोमीटर तवील सेक्शन मुकम्मल हो चुका, जबकि लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का वाहिद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा रोजाना लाखों मुसाफिरों को सहूलत मुहैया कर रहा है। दूसरी जानिब क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल खुंजराब ता रावलपिंडी 820 किलोमीटर तवील लाइन बिछाई जा चुकी है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम मंसूबे ML1 का PC1 मंजूर हो चुका है, जबकि सनती शोबे में फैसलाबाद में अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जेर तामीर है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो CPEC समेत दीगर मंसूबों पर काम करने वाले 3,355 चीनी बाशिंदों के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने फौज, रेंजर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशल ब्रांच और पुलिस के मजमूई तौर पर 11,225 एहलकार तैनात किए हैं। जराये के मुताबिक 4,136 सिक्योरिटी एहलकार CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों जबकि 7,122 नॉन CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। फैसल इब्राहिम, लाहौर, अब तक। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के तहत गवादर पोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए काम तेज़ी से जारी है। बलूचिस्तान में CPEC के मुतअद्दिद मंसूबे ज़ेर तकमील हैं, जिनके मुकम्मल होने से सूबे में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। बलूचिस्तान का साहिली शहर गवादर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC का दरवाजा कहलाता है। गवादर के साहिल की सबसे बड़ी खूबियां ये हैं कि इसके साहिल का पानी गर्म रहता है और ये खित्ते की सबसे ज्यादा गहरी यानी डीप सी पोर्ट है, जहां मदरशिप भी बआसानी साहिल पर लग सकती है। जबकि आलमी तिजारत के हवाले से गवादर का महल वकूफ भी निहायत अहम है। CPEC के तहत जदीद सहूलियात से आरास्ता गवादर पोर्ट पर काम तेजी से जारी है, जबकि गवादर से शुरू होने वाली CPEC की मगरबी रूट की शाहरा जो चीन के शहर काशगर तक जाती है। बलूचिस्तान में इस शाहरा की तामीर के काम का आगाज हो चुका है। शाहरा मुकरान डिवीजन से होती हुई खुजदार, कल्लात, सूराब, कोयटा और योब से गुजर कर खैबर पख्तूनख्वा से जा मिलेगी। CPEC के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इक्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे, जबकि CPEC के तहत ही तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर भी काम जारी है, जिनकी तकमील से सूबे में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। चीन पाक इक्तिसादी राहदारी वो मंसूबा है जिससे सूबे में इक्तिसादी इनकलाब आएगा। बैरूनी सरमायाकारी आने से बलूचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के साथ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। गेम चेंजर मंसूबे की तकमील से जहां मुल्की मैशत बेहतर होगी, वहीं बलूचिस्तान के लोग इस मंसूबे से भरपूर मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन इरशाद रब्बानी के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा अब तक।